friends, welcome back to my channel. As today we will read chapter Money and Credit, which is chapter number 3 of your economics, and very interesting and very easy if you understand it very carefully. Then you did you know about money and credit, and what is money and what is a credit? So let us start our chapter by going back to our history when there was no money and when there was no credit. There was a term called barter system. Did you know what was the barter system? And I know many of you know that what is the barter system. Then now start, what is the barter system? A barter system is an old method of exchange. ये एक पुराना तरीका है लोगों का जो हिस्ट्री में हुआ करता था, मतलब हमारे पुराने ज़माने में हुआ करता था कि बार्टर सिस्टम जैसे द सिस्टम हैज़ बिन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। ये बहुत साल पुराने सिस्टम हैं जो लोग चूज़ किया करते थे। ये सिस्टम ऐसे होता था कि इफ़ आई हैड राइस एंड अनदर पर्सन हैज़ एप्पल, then they exchange it, but it was not easy barter system because there was a lack or limitation in barter system, which was double coincidence of want. That like third point says that people exchange services and goods for other services and goods in return, means there was an exchange between goods. So it was not possible because of two limitations. First was a double coincidence of wants. What is the double coincidence want? Exchange can only happen if both the parties agree to trade. No single party can complete द डील। इसका ये मतलब है कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री करें कि हम आपका गुड ले लेंगे। अगर वो एग्री ना हो तो क्या हुआ? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन्स बार्टर सिस्टम नहीं होगा। तो सबसे पहली हमारी लिमिटेशन वो बाय वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 mark दैट द CBSE can question you that what is the double coincidence of what, or what is the barter system, what was their limitations. So second limitation of barter system is indivisibility of commodities. Let's say it was really difficult to measure and divide a commodity without the loss in value. In most cases either the commodity was indivisible or a census was not reached. इसका ये मतलब है कि कई बार लोगों को घाटा भी हो जाता था कॉमोडिटीज बेचने का, क्योंकि सपोज आई हैव राइस एंड अ शू मेकर वांट्स माय राइस। अगर वो राइस मैं आपको गलत बेच रही हूँ, मीन्स आप वो राइस ख़राब है और आप ले रहे हो कि आपको राइस मिल रहे हैं, तो ये मेरा लॉस होगा कि मैंने शूज़ भी दे दिए और राइस भी मुझे ख़राब मिले। तो इट इज़ द इंडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। तो इसके कारण ये बार्टर सिस्टम की दो मेन लिमिटेशंस थी। लेट्स वांट मोर लर्न अबाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो double coincidence of want is a requirement for an efficient barter system, means it is a requirement of the barter system. It was necessary for a person who wanted to trade his or her good or services to find some another person who was not only willing to buy his good or service but also possess that good which the former wanted. It means that कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो केवल ये नहीं है कि मैं अपनी जो सर्विस अपना गुड है किसी को दे दूं, पर उसका ये भी एग्री होना चाहिए जो अपोजिट पर्सन है वो मेरी चीज़ ले भी और मुझे अपनी चीज़ दे भी, जो वो उसको मतलब दोनों पर्सनस को चाहिए। तो दिस इज़ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर ये नहीं पॉसिबल हुआ कि जैसे मुझे राइस चाहिए और मेरी सिस्टर को एप्पल चाहिए, पर मेरे पास एप्पल नहीं है, मेरे पास शूज़ है पर मुझे उससे राइस चाहिए, तो ये बस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया कि अब दोनों की जो डिमांड है वो नहीं पूरी हो पा रही। दैट इज़ कॉल्ड व्हेन माय द बार्टर सिस्टम वुड नॉट बी पॉसिबल। सो let us take an example to more understand it. So this is a shoemaker, and we know that for a shoemaker
we need a hammer. So he is thinking that I will give shoes for a new hammer. अब जो हैमर बनाता है तो वो इसकी डिमांड पूरी कर पाएगा कि वो शूज़ ले ले और उसे उसके बदले में हैमर दे दे। तो ये सोच रहा है कि मैं अपना शूज़ एक हैमरर को दूंगा कि वो मुझे हैमर दे दे। तो ये सोच रहा है। और आई विल गिव राइस फॉर शूज़ मीन्स ये शू मेकर है, ये इसको मतलब अपने राइस देगा शूज़ के लिए। पर ये क्या कह रहा है कि मुझे शूज़ चाहिए हैमर के लिए। मैंने अपने शूज़ देने हैं हैमर के लिए, और ये कह रहा है मैंने अपने राइस देने शूज़ के लिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों की डिमांड अलग अलग है। तो वैसे ही इन दोनों में देखो, आई विल गिव राइस फॉर शूज़, इसने तो कह दिया कि मैं शूज़ के लिए अपने राइस दूंगा, ठीक है। और अब ये जो फिशरमैन है वो क्या कह रहा है, आई हैव फिश टू गिव एंड आई नीड राइस। अब ये राइस फार्मर को अपनी जो फिश है वो देगा राइस के लिए। क्या डिमांड पूरी हो पा रही है दोनों की? क्योंकि राइस वाला फार्मर जो है वो कह रहा है कि मैं राइस शूज़ के लिए दूंगा, पर शूज़ मेकर ने तो हैमर के लिए अपने शूज़ देने हैं। तो तीनों कैसी ये जो 3 पर्सन है इनमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि तीनों में से किसी की एक की डिमांड भी डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रही है। मीन्स देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इन दिस केस। लाइक देयर इज अनदर एग्जांपल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने बार्टर सिस्टम करना है तो इट इज़ मी मीन्स सपोज कर लो ये एक्स ओनर है और वाई भी एक ओनर है। इसको आप मान लो ये शू मेकर है, ये शू मेकर और ये है फार्मर। तो शू मेकर और फार्मर को आप एक्स एंड वाई लेट कर लो। तो बार्टर सिस्टम जो है वो तब तक पॉसिबल है व्हेन द ओनर ऑफ एक्स वांट्स वाई। जब एक्स वाई की चीज़ को वांट कर रहा है और वाई एक्स की चीज़ को वांट कर रहा है। मीन्स जो शू मेकर है वो फार्मर से राइस एक्सपेक्ट कर रहा है और जो फार्मर है वो शू मेकर से एक पेयर शू का एक्सपेक्ट कर रहा है, तभी बार्टर सिस्टम हो पाएगा। अगर ये शू मेकर कह रहा है कि आई वॉन्ट फिश एंड आई विल गिव शू फॉर इट, तो इनमें डबल कोइंसिडेंस वांट्स नहीं हो सकता। और अगर वाई कह रहा है कि आई नीड अ पॉट, तो तब भी जो है हमारा बार्टर सिस्टम वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि अब ये पॉट मांग रहा है और जो शू मेकर है वो हमारे जो शू मेकर है वो उसके लिए फिश मांग रहा है। तो डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पाएगी या बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा। इट वॉज अ ओल्डर मैथड। तो इसमें लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई, तो जिसके कारण उन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी निकाली मीन्स करेंसी निकाली। तो व्हाट इज द करेंसी और व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी जो है वो इंक्लूड करते हैं नो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। So the let's we start with modern forms of money. Modern forms of money include currency including paper notes and coins. The modern currency is without its own use in India. The Reserve Bank of India issues currency on the behalf of the central government. Very important for 1 mark. CBSE can question you that who issues who issues currency notes on the behalf of the central government, then you will say Reserve Bank of India. In India, rupee widely accepted as a medium of exchange। की जो हमारी जो रुपी को नोट है और कॉइन्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और नॉर पीपल कुड
डिनाई द पेमेंट मेड इन द मनी। इसका मीन्स ये है कि जैसे हम चावल खरीदने जाते हैं या यानी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं कुछ खरीदने, तो हम जो पे करते हैं ऑन अ मनी, तो वो डिनाई उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि ये इट इज़ रूल ऑफ द कंट्री। और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें कोई भी डिनाई, इसमें जो पेमेंट की जाती है उसको डिनाई नहीं कर सकता। इन इंडिया रुपी वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। बिकॉज आई टेल कि क्योंकि ये जो हमारी करेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर बनाई जाती है, और इसलिए इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को नोट्स बनाना मना है। तो इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ द करेंसी। देन वी विल गो टू, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपको कुछ कॉइन्स दिख रहे होंगे, there are some coins। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, क्योंकि आपको एक पिक्चर इमेज का भी क्वेश्चन आएगा सीबीएसई के पेपर में। जी जैसे ये हमारी तुगलक कॉइन है ये, तो आपको इसमें पिक्चर बना के दे देंगे और आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि ये कौन सा कॉइन है। आपको कहेंगे ये गोल्ड मोहर है अकबर के टाइम की, ये तुगलक कॉइन है, ये गुप्तास कॉइन है। तो आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगी, तो यू हैव टू टिक द करेक्ट वन। सो करेक्ट वन you should know that it is a Tughlaq coin. So you should know that the symbols of these coin, like this is the Gupta coin, it is gold mohr from Akbar's region, so it is very important for 1 mark। ओके उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि एक टर्म पढ़ेंगे हम आगे, इट इज अ क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट आप समझ लो कि एक तरह के लोन ही है। तो द एबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू ऑब्टेन द गुड्स और सर्विसेज बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट पेमेंट वुड बी मेड इन द फ्यूचर। इट मीन्स दैट यू हैव सीन मैनी ऑफ यू हैव सीन द क्रेडिट कार्ड्स अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स। सो व्हाट इज इट? तो इसका ये यूज़ होता है कि जैसे हम मॉल्स में शॉपिंग करने के जाते हैं, तो हम वी यूज़ द क्रेडिट कार्ड। इट मीन्स हमारी जो बैंक है वो हमारी पेमेंट करता है उस टाइम पर हमारे अकाउंट से कोई पैसे नहीं जा रहे हैं। पर हम जब ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, विद इन द 15 days वी हैव टू रीपे बैक द पेमेंट टू द बैंक, क्योंकि बैंक के पैसे जा रहे हैं, हमारे अकाउंट में से पैसे नहीं जा रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड जो है वो सभी लोगों के पास नहीं होता है, और बैंक स्पेशली जिनको क्रेडिट कार्ड बनवाना होता है, पहले जो हमारा बैंक होता है उसके जो पर्सन होता है उसके बारे में सब कुछ पता लगाते हैं कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, कितने पैसे हैं इनके पास, कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये सब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। तो जब हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वी यूज टू हैव अ क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद अस। उसका ये यूज़ होता है कि हम सब सीधा बैंक से पेमेंट होती है, पर वो हमारे अकाउंट से पैसे नहीं जाते हैं। विद इन 15 days वी हैव टू रीपे बैक द क्रेडिट। सो क्रेडिट इज लाइक अ लोन, बिकॉज व्हेन वी टेक अ लोन, कि जब हम लोन लेते हैं तब हमको फॉर एग्जाम्पल I am a small farmer and there is a tehsildar or zamindar, and I take loan from him, and within the month with the interest rate we have to pay back the loan। पर जो हम क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, उसमें सिर्फ इतना होता है कि सिर्फ बैंक पे कर देता है उस स्पेसिफिक टाइम के लिए, और विद इन द 15 days वी हैव टू रीपे बैक द लोन। सो दिस इज कॉल्ड अ क्रेडिट, बट वी कैन से इट इज लाइक अ लोन, बट credit and loan are totally different। So in this video we will learn about this only। So to continue this chapter, do watch my next video। Thank you।